Thank you. Thank you. So today we'll discuss three features of stockage. The first feature is scans. The second feature is my combination scans. And the third feature is trending stocks. So I'll start with scans. My name is Kaustav Law from Stockage. So we'll start with scans. In the home page, you'll find scans in the premium analytics section. If you click on scans, उसके अंदर आप देखोगे there are 7 categories. There are 7 categories under scans: price scans, volume and delivery scans, technical scans, fundamental scans, future and option scans, strike-wise option scans, candlestick scans. So these are the 7 categories of scans which we provide. Scans are algo-based screening tools. Algo is given. For example, if you click on price scans, you'll find several other scans inside it. These are the subcategories of the scans, price scans. So if you click on previous day breakout scan, you'll find previous day breakout scans, weekly breakout scans, monthly breakout scans, 52 weeks breakout scans, then 1 day behavior, 2 day behavior, 5 years, 2 years, relative performance scans. These are the subcategories of price scans. So I'll explain 2 to 3 scans of each category. So I'll start with previous day breakout scans. If you click on previous day breakout scans, you will find there are 2 scans: closing above previous high, closing below previous high. So closing above previous high, if I click on that, you'll see these are the stocks which have qualified for this scan, closing above previous high. So for example, KPR Mill Limited. This stock's previous high was 859.15. And now it has closed last day, that is 6th August, 945.55, which is almost 10% over the previous high. So it's moving towards high. It's crossing the high of previous day. So it's a bullish stock. ये स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा क्लोज किया है, तो ये स्टॉक आपको डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इजी रहेगा. ये सब स्टॉक्स in one shot you will find each and every stocks whose closing price is above previous high. तो ये सब स्टॉक एक शॉट में आपको दिख गया. ये स्कैन्स आप देख रहे हो 6 अगस्त का है, उसका नीचे मेजर स्टॉक्स लिखा हुआ है. सो फिल्टर ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं. फिल्टर ऑप्शन जो है, ये राइट हैंड साइड में एक आइकन है फिल्टर बोल के, तो आप फिल्टर क्लिक करोगे तो बाय इंपॉर्टेंस फिल्टर है, बाय प्राइस, बाय कैटेगरी, बाय मार्केट कैप, बाय सेक्टर. आपको अगर लगे कि खाली एनएससी स्टॉक्स चाहिए तो आप एनएससी स्टॉक्स खाली देखो. सॉरी, एनएससी नहीं, एनएससी एफएनओ स्टॉक्स खाली देखना है, या एनएससी स्टॉक्स खाली देखना है, तो एनएससी क्लिक करो, अप्लाई करो, तो only the NSE stocks will come. If I want only BSE stocks, I have to click by importance, BSE stocks. If you click on BSE stocks, apply, then only BSE stocks will come. By default, we show major stocks. By importance, major stocks. All the good stocks will come under major stocks. Major stocks is defined. It consists of Nifty 500 stocks and BSE 500 stocks. निफ्टी 500 और बीएससी 500 स्टॉक्स में जितना सारा स्टॉक्स है वो मेजर स्टॉक्स में आता है. तो आप मेजर स्टॉक्स बाय डिफॉल्ट फिल्टर्ड आता है. आपको अगर चाहिए डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिल्टर यहाँ दिया हुआ है. आपको चाहिए बाय प्राइस, खाली बिलो 10 रुपीज देखना है आपको, अप्लाई कीजिए और मेजर स्टॉक क्रॉस कर दीजिए. तो देखिए बिलो ₹10 का स्टॉक्स दिख गया, जिसका प्रीवियस डे हाई क्लोज किया है, आज क्लोज किया है प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके. सोचिए नोवोडे एंटरप्राइज, इसका प्रीवियस हाई था ₹7.10 और क्लोज किया है ₹7.50, विच इज ऑलमोस्ट 5.5-6% ऊपर. तो ये स्टॉक इन फ्यूचर आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है. तो ये स्टॉक्स आप खरीद लो तो बढ़िया रिटर्न ले सकते हो.
तो ये स्कैन्स आप इजीली फॉलो कर सकते हो यहाँ से। अभी नेक्स्ट जाते हैं 52 वीक्स ब्रेकआउट स्कैन्स में। 52 वीक्स ब्रेकआउट स्कैन्स में अंदर जाओगे तो दिखेगा क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक्स हाई, क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक्स लो, क्लोज विद इन 52 वीक्स हाई जोन, क्लोज विद इन 52 वीक्स लो जोन। ये सब स्कैन्स है। कोई भी स्कैन्स को आपको अगर इन डिटेल्स जानना है तो आप क्लिक करो क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक्स हाई। अगर हम अंदर जाते हैं तो राइट हैंड साइड ऊपर में इन्फो सेक्शन है, आई को दबाओ तो यहाँ मीनिंग और सिग्निफिकेंस दिख जाएगा। ये क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक्स हाई जो है, टुडेज क्लोज ऑफ स्टॉक इज हायर देन द लास्ट ईयर हाई। माने 52 वीक्स हाई को क्लोज क्रॉस करके क्लोज किया है। फॉर एग्जांपल ग्लिम फैमबैट, ये जो कंपनी है बीएससी एक्सचेंज में है, लास्ट 52 वीक्स हाई इसका था 5 रुपीज 68 पैसा और क्लोज किया है 5 रुपीज 96 पैसा, विच इज ऑलमोस्ट 5% ऊपर। तो ये सब स्टॉक्स आप माने बुलिश लग रहे हैं हम लोग को, तो ये सब स्टॉक आप खरीद के खेल सकते हो, माने आप खरीद के ट्रेड कर सकते हो। तो ये फिल्टर आप लगाओ बाय इंपॉर्टेंस मेजर, तो बढ़िया स्टॉक्स दिखेगा आपको। देखिए फाइजर, फाइजर ये स्कैन में फंस गया है, ये स्कैन में क्वालिफाई किया है फाइजर। तो फाइजर का लास्ट 52 वीक्स हाई जो था 5,675, 5675, और लास्ट डे माने लास्ट ट्रेडिंग डे 6 अगस्त को क्लोज किया है 5792.90। तो ये ऑलमोस्ट 2% ऊपर क्लोज किया है। तो ये स्टॉक इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट दे सकता है, ऊपर तक ऊपर भाग रहा है ये स्टॉक। सिमिलरली आप अगर क्लोज एंटरिंग 52 वीक्स हाई जोन, माने 52 वीक्स हाई से 15% नीचे तक हम लोग लेता है, 15% का गैप तक हम लोग लेता है। तो देखिए क्लोजेस्ट जो है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस, इसका प्रीवियस क्लोज था 349.90 और अभी क्लोज किया है 385.10। तो ये जो है ना 385 में क्लोज किया था, प्रीवियस क्लोज था 349.90 और 52 वीक्स हाई है 429। तो ये 385 और 429 बहुत माने पास आ गया है। 385 में क्लोज किया है और 429 का गैप है 10%, केवल मात्र मात्र 10% का डिफरेंस है। तो कभी भी ये क्रॉस करके ऊपर चला जा सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अगर देखोगे इन्फो सेक्शन में सिग्निफिकेंस में दिखेगा, दिस इज बुलिश इंडिकेटर as it indicates the stock is moving upward towards the 52 weeks high। तो ये 52 weeks high कभी भी तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो ये जो स्कैन है क्लोज एंटरिंग 52 weeks high जोन, ये बहुत ही अच्छा स्कैन है। आप लोग को लाइव स्टॉक मार्केट का अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है और आपका लाइफ इजी कर देगा ये लोग। ये स्कैन्स आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ जो है ना राइट हैंड साइड में एक डाउनलोड आइकन है, तो आप अगर क्लिक करोगे तो आई यू श्योर टू डाउनलोड बोल के एक बॉक्स आएगा, उसमें यस करोगे तो आपको डाउनलोड आ जाएगा। तो अगर आप क्लिक करके खोलोगे ये एक्सेल, एक्सेल शीट में डाउनलोडेड मिलेगा। इजीली यहाँ से आप रिसर्च करो, फिल्टर करो। एक्सेल शीट में आ गया, आपका हाथ में पूरा डेटा आ गया, तो आप रिसर्च करने में इजी रहेगा आपको। तो ये डाउनलोड ऑप्शन भी बहुत तगड़ा है, आप यूज कर सकते हो। तो 52 वीक्स हाई जोन वाला एक स्कैन दिखा है और क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक्स हाई। तो ये स्कैन्स, दो स्कैन आपको दिखा दिए। सिमिलरली ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स भी है। ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स क्या है? जब से वो कंपनी लिस्ट हुआ है आज तक, वो ऑल टाइम जो प्रीवियसली था लास्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस करके वो क्लोज किया है। क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई। ये केपीआर मिल्स लिमिटेड, इसको देखिए लास्ट ऑल टाइम हाई 934 था और अभी क्लोज किया है 945.55, जो ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर क्लोज किया है। और आज ही देखिए 14% ऊपर भागा था केपीआर मिल्स, मैंने कल कल 14% ऊपर था 6 तारीख को। तो ये स्टॉक्स आप वॉच करके आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इजी रहेगा। आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ऐड कीजिए। ये क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई किया है माने और भी ऊपर जा सकता है, बुलिश स्टॉक है। सिमिलरली क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई और लो जोन। सोचिए लो जोन में जाते हैं, क्लोज विद इन ऑल टाइम लो जोन। ये टाटा टेक्नोलॉजीज जो है, इसका ऑल टाइम लो 970 रुपीज 10 पैसा था, अभी क्लोज किया है 983.05, जो ओनली 1.5% का गैप में खड़ा हुआ है। तो ये कोई भी टाइम में ये लो
तोड़ के नीचे जा सकता है। तो ये बेरिश स्टॉक है, ये नीचे का तरफ भाग रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो आप क्विट करो, या आपको अगर ट्रेड करना है तो सेल करके बाई करने का स्कोप है। तो ये ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ये वन शॉट आपको मिल जा रहा है, कोई कोई स्टॉक कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए या बेचना चाहिए। तो ये है स्कैन्स। स्कैन्स आपको फिल्टर दे रहा है, जो जो स्टॉक्स ये सब स्कैन्स क्वालिफाई कर रहा है वो स्टॉक एक जगह आपको दिखने में आ रहा है। इजीली आप यूज करो और शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करो। तो अभी रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन्स, ये स्कैन्स में जाते हैं। रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन्स क्या है? देखिए चारों स्कैन्स इसका अंदर है। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ्स, stock underperforming benchmark index in both 1 week and 3 months, stock outperforming sectoral index in both 1 week and 3 months, stock underperforming sectoral index in both 1 week and 3 months. For example, stock outperforming benchmark index in both 1 week and 3 months में घुसते हैं। क्लिक करो तो अंदर लेके जाएगा। अंदर पे ये सब स्टॉक्स क्वालिफाई किया है, स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ्स। ये सब स्टॉक ना जितना रिटर्न दिया है उतना बेंचमार्क माने निफ्टी 50 भी उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है। माने निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा रिटर्न ये सब स्टॉक दे रहा है। इसका मतलब है पीसीबीएल फॉर एग्जांपल, ये जो स्टॉक है ये निफ्टी 50 से भी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब स्टॉक बुलिश स्टॉक है, माने बेंचमार्क इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म करके ऊपर चला जा रहा है। तो पीसीबीएल एक वीक में परफॉर्म किया है 16%, माने 16% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। और निफ्टी 50 3.5% नीचे था, माने मार्केट मंदा था मगर पीसीबीएल आउट परफॉर्म करके ऊपर भागते चला जा रहा है। तो स्टॉक में दम है, वो दम दिखा रहा है। तो 3 मंथ्स परफॉर्मेंस देखिए 46.4%। 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दिया ये स्टॉक पीसीबीएल। और निफ्टी 50 ये 3 मंथ्स में खाली 7% ऊपर था। तो आपको दिखने में ही आ रहा है कि 39% गैप है। 39.5% ज्यादा परफॉर्म किया है ये स्टॉक पीसीबीएल निफ्टी 50 से। तो ये स्टॉक में दम है। तो ये स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ले सकते हो। रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन्स बेंचमार्क इंडेक्स वाला। सेक्टोरल इंडेक्स जो है, आप क्लिक करो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडेक्स, क्लिक किए तो इसका अंदर देखो फिर से पीसीबीएल है। पीसीबीएल का सेक्टर है कमोडिटीज, तो निफ्टी कमोडिटीज का अंदर पीसीबीएल है। पीसीबीएल 16%, निफ्टी कमोडिटीज 4.5% नीचे। 3 मंथ्स में भी देखो 46.4% पीसीबीएल रिटर्न दिया है और निफ्टी कमोडिटीज खाली 4%। 41% से वो आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, सेक्टोरियल इंडेक्स को। सिमिलरली जोमैटो, जोमैटो देखिए एक हफ्ता में 9.7% रिटर्न दिया है और निफ्टी आईटी जो है 5% नीचे था, माने 14% ज्यादा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 15% ज्यादा परफॉर्म किया है जोमेटो एक हफ्ता में। और 3 मंथ्स 27% रिटर्न दिया है, निफ्टी आईटी 16% केवल मात्र। तो 11% का गैप है। तो ये सब स्टॉक वन शॉट में आपको दिख जा रहा है। आप आपका डिसीजन मेकिंग इजी कर दे रहा है हम लोग। तो आप ये सब स्कैन्स फॉलो करो, ट्रेड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इजीली लो। अभी नेक्स्ट जो स्कैन कैटेगरी है वो है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यहाँ 3 सब कैटेगरीज है। हम वॉल्यूम एंड डिलीवरी दिस मंथ स्कैन्स है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी दिस वीक स्कैन्स है एंड वॉल्यूम डिलीवरी स्कैन्स है। वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स का अंदर जाते हैं तो उसका अंदर 5 स्कैन्स है। तो हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी में एक बार घुसते हैं। हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, ये देखिए इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड बोल के जो स्टॉक है उसका डिलीवर्ड क्वांटिटी 1,24,000। उसका एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी जनरली होता था, लास्ट 5 डेज का एवरेज हम लोग करता है, तो एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी 8,000 था। और लास्ट 6 तारीख को उसका डिलीवर्ड क्वांटिटी है 1,24,000। तो ऑलमोस्ट 15x 15 टाइम्स ज्यादा डिलीवरी उठा है। तो कुछ तो बात है ये स्टॉक में कि एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी जो है 8,000 होता है जनरली, आज हो गया 1,24,000। तो ज्यादा पार्टिसिपेंट आया है, ज्यादा ट्रेड हुआ है। तो ये स्टॉक दमदार है।
सिमिलरली ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए, ट्रेडेड क्वांटिटी माने टोटल क्वांटिटी जो ट्रेडेड हुआ है 1,33,000, और एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी जनरली होता है 14,000, 14,500, 15,000, और 1,33,000 ट्रेडेड क्वांटिटी, 9 टाइम्स ज्यादा। तो कुछ तो बात है ये स्टॉक में, तो अलार्मिंग है। तो ये स्टॉक्स आप देखो, इसका प्राइस अगर ऊपर का तरफ भाग रहा है तो फिर डिलीवरी भी उठ रहा है, माने ये स्टॉक ऊपर लंबा में ऊपर जा सकता है, इन फ्यूचर ऊपर जा सकता है। तो यू शुड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। केपीआर मिल्स लिमिटेड, ये आप प्राइस भी देखो भागते जा रहे हैं कुछ दिन से, और इसका डिलीवरी भी उठते जा रहे हैं। देखिए 8 लाख, ऑलमोस्ट 8 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठा है, और एवरेज डिलीवरी जो उठता था वो 60,000, 62,000। तो कुछ तो बात है, उसीलिए प्राइस भी भाग रहा है ऊपर की तरफ, और डिलीवर्ड क्वांटिटी, ट्रेडेड क्वांटिटी भी ऊपर जा रहा है। देखो 54 टाइम्स ट्रेडेड क्वांटिटी बढ़ा है। तो ये मामूली बात तो है नहीं, पार्टिसिपेशन बढ़ा है माने कुछ तो बात है। तो ये सब स्टॉक इन वन शॉट यू कैन जस्ट चेक एंड यू कैन टेक योर डिसीजन। वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स इसीलिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्कैन कैटेगरी टेक्निकल स्कैन्स। टेक्निकल स्कैन्स जो है, टेक्निकल इंडिकेटर्स लेके जो स्कैन्स हम लोग एल्गो बनाया है, वही सब स्कैन्स इसका अंदर है। आप देखो सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन्स है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्कैन्स है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कैन्स है, फिर सीसीआई स्कैन्स है। ये सब इंडिकेटर्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो सब है, उसका पैरामीटर्स एल्गो फिक्स करके हम लोग बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन्स में एक बार घुस के देखते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, अगर जानना है तो ये इन्फो आई क्लिक करो, पूरा इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लोजिंग नियर 20 SMA, क्लोजिंग नियर 50 SMA, ये सब बहुत सारा स्कैन्स हम लोग पैरामीटर्स फिक्स कर दिया है, 20, 50, 100, 200, ये सब स्कैन्स आपको मिल जाएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, वो है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर कौन सा स्कैन है? ये स्कैन 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो। 50 डेज, 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस क्रॉस कर लिया है, 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। 200 माने बहुत दिन पुराना सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये रिसेंट वाला 50 दिन का एसएमए क्रॉस करके ऊपर चला गया है। तो ये स्टॉक हम लोग बुलिश पकड़ते हैं, माने ये जो प्राइस रेंज है इससे ऊपर जा सकता है। माने ये क्रॉस किया तो एक सिग्नल देता है कि और भी ऊपर का तरफ जा सकता है ये स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल पिरामल एंटरप्राइज, ये स्कैम में फंसा है। तो पिरामल एंटरप्राइज का देखो, 50 डेज एसएमए 907 रुपीज 96, और 200 एसएमए जो है वो 905 रुपीज 80 पैसा। तो 905 रुपीज 80 पैसा क्रॉस करके 50 एसएमए जो है 907.96, और क्लोज किया है देखो 981.70। तो 200 एसएमए क्रॉस करके बहुत ऊपर चला गया है, तो 981.70 में क्रॉस किया है। और 50 एसएमए 907 था कैलकुलेशन वाइज, तो वो 905 क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सब स्टॉक्स जो है ऊपर जा सकता है। देखो 981 क्लोज किया है, तो अगर आप 907 रुपीज जब क्रॉस किया है, 50 SMA जब क्रॉस ओवर हुआ, उस टाइम अगर खरीद लेते ये स्टॉक, तो देखो मुनाफा होता, प्रॉफिट होता। तो ये सब स्कैन्स जो है बहुत यूजफुल है फॉर द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। स्टार हेल्थ भी देखो, इसका 50 एसएमए था 556, 200 एसएमए 556.45, और 50 एसएमए 556.50। तो ये क्रॉस ओवर हो गया है, और क्लोज किया है देखो 571, जो 20 रुपया ऊपर था, तो आपको प्रॉफिट हो जाता। तो ये है 50 डेज और 200 डेज का क्रॉसओवर। तो ऐसे सिमिलरली बहुत सारा क्रॉसओवर्स है जो आप फॉलो कर सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन्स में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो आरएसआई स्कैन्स में जाते हैं, तो आरएसआई स्कैन्स में आप देखोगे आरएसआई बुलिश, आरएसआई ट्रेंडिंग अप, आरएसआई क्रॉस्ड अबव 70, सिमिलरली क्रॉस्ड बिलो 30, आरएसआई इन ओवरबॉट जोन, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन। ईच एंड एवरी स्कैन्स आप अंदर जाओ और इन्फो सेक्शन पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप आपका जो डिसीजन लेना है तो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम आरएसआई क्रॉस्ड अबव 70 में जाते हैं। आरएसआई क्रॉस्ड अबव 70 जो वो है, वो थोड़ा अलार्मिंग है।
इतना बढ़ते जा रहा है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। सेरा सैनिटरी वेयर, ये प्राइस भी भागते जा रहा है ऊपर, और आरएसआई भी ऊपर चला गया है। इसका प्रीवियस आरएसआई 65.62 था, और अभी आरएसआई जो है 71.50, तो 70 क्रॉस करके ऊपर का तरफ है। तो ये सब स्टॉक जनरली देखने को मिलता है कि इन नियर फ्यूचर नीचे जा सकता है। तो आपका स्टॉक, ये स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। आप डिसीजन लेने के लिए ये स्कैन यूज कर सकते हो कि ये स्टॉक अगर क्विट करना है तो बेच के प्रॉफिट कर लो। तो सिमिलरली आरएसआई बुलिश, आरएसआई क्रॉस्ड अबव 30, ये सिग्नल बोलता है कि ये स्टॉक बुलिश है, अभी ले लो। लेने से इन फ्यूचर प्रॉफिट दे सकता है। ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड, इसका प्रीवियस आरएसआई था 24 रुपया 83 पैसा, 24.83, और अभी आरएसआई जो है 33.37, विच इज विच हैज क्रॉस्ड इट्स प्रीवियस आरएसआई एंड 30 लेवल। 30 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30 से ऊपर अगर आरएसआई जाता है तो वो और भी ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो ये ग्राफाइट इंडिया, देखिए 500 रुपया, अभी आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट में लेके जाएगा। तो चार्ट और प्राइस टैब में आप जाके देखो कि एक हफ्ता में लो था 485, 552 तक गया है। तो ये स्टॉक ऊपर का तरफ जा सकता है। तो आरएसआई बुलिश आप ट्रैक कर सकते हो ये स्कैन को। सिमिलरली आप अगर दूसरा एक स्कैन में जाओगे, सोचो सीसीआई, सीसीआई स्कैन्स में जाते हैं तो ये भी, यहाँ भी देखो बुलिश लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग अप लिखा हुआ है, क्रॉस टॉप ऑफ 100। तो आप अगर बेरिश में जाते हो, सीसीआई बेरिश, सीसीआई बेरिश क्लिक करोगे तो ये सब स्टॉक जो है बेरिश दिख रहा है, माने ऊपर से 100 का लेवल तोड़ के नीचे जा रहा है। प्रीवियस सीसीआई 118 था, 100 ब्रेक करके सीसीआई 97 हो गया है। तो ये स्टॉक इन फ्यूचर घट सकता है, प्राइस घट सकता है, तो ये बेरिश स्टॉक है। तो ये फॉलो करो और आपका खुद का डिसीजन ले ले सकते हो। 409 रुपया, देखिए थोड़ा नीचे जा रहा है स्टॉक, 420 रुपया से नीचे का तरफ जा रहा है। नेक्स्ट स्कैन कैटेगरी में जाते हैं, फंडामेंटल स्कैन्स। फंडामेंटल स्कैन्स जो है, फंडामेंटल जो पैरामीटर्स है कंपनी का, फंडामेंटल माने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब लेके हम लोग स्कैन बनाया है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन में अगर जाते हैं हम लोग, उसका अंदर देखो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब स्कैन्स प्री डिफाइंड दिया हुआ है। तो ये हाई रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर जाते हैं हम लोग, तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बोलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को हाई रिटर्न दे रहा है कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को हाई रिटर्न मिलते जा रहा है। एमएमटीसी लिमिटेड, ये कंपनी देखो 247.7% रिटर्न दिया है इक्विटी शेयर होल्डर को, ईयर एंडेड 2023-03। माने ये स्टॉक 250% रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक में दम तो है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा नहीं होने से इतना रिटर्न तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं। तो ये फंडामेंटली अच्छा है कंपनी, उसीलिए फंडामेंटल स्कैन्स का अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन दिया हुआ है। सिमिलरली स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इसका भी देखो 154% रिटर्न दिया है इक्विटी होल्डर्स को। तो ये स्टॉक प्रॉफिट बना रहा है, ये स्टॉक परफॉर्म बढ़िया कर रहा है, उसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी अगर आप जाओगे हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माने ये जो कंपनी है, कंपनी जो कैपिटल लगाया है, वो खुद का कैपिटल, लोन से लिया लेके कैपिटल, जो भी कैपिटल लगाया है उसका रिटर्न क्या है। देखो नेस्ले इंडिया लिमिटेड 185% रिटर्न दिया है, जितना कैपिटल लगाया है उससे 185% रिटर्न मिला है। तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैपिटल तो उठ गया है, उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो नेस्ले इंडिया, सनोफी इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, ये सब कंपनी आप, सुजलॉन तो जानते ही हो बढ़ते ही जा रहा है, तो फंडामेंटली कंपनी बहुत तगड़ा है। इसका अंदर आप जाओगे सुजलॉन एनर्जी में, तो देखो प्राइस में एक बार जाते हैं, प्राइस में जाओ तो दिखेगा, एक एक साल का देखो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा नहीं होने से कंटिन्यूअस बढ़ेगा नहीं।
तो ये कंपनी अच्छा है, उसीलिए रिटर्न बढ़िया दे रहा है। तो ये सब स्टॉक फंस जा रहे हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स में। बहुत सारा स्कैन्स है, आप स्कैन्स इंडिविजुअली में जाओ, इन्फो सेक्शन देखो और आपका स्कैन फॉलो करो। प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन कैश फ्लो स्कैन्स में जाता है। कैश फ्लो स्कैन्स बहुत इंटरेस्टिंग स्कैन है। इंक्रीजिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, माने कंसिस्टेंटली कैश आते जा रहे हैं फ्रॉम ऑपरेशंस। इंक्रीजिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, लास्ट ईयर उससे पहले माने कंटिन्यूअसली एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, माने जो कोर सेगमेंट है कंपनी का, जो कोर बिजनेस एरिया है, उससे कितना कमा रहा है, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फॉर एग्जांपल ये एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, इसका देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 9x है, माने 9 टाइम्स बढ़ते जा रहा है। देखो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। अंदर जाओगे तो दिखेगा, देखिए 2015 में 39 करोड़ था कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी 433 करोड़ है। और लास्ट 5 इयर्स देखो कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जा रहा है, 47, 86, 104, 274, 433। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इतना बढ़ रहा है, माने कंपनी में दम है। तो आप कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस में लॉन्ग टर्म में ले सकते हो और पोर्टफोलियो में आपका ऐड कर सकते हो। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये क्या है, माने पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली दे रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। माने कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंट है और पॉजिटिव है। या इन्फो सेक्शन में आप जाओ तो दिखेगा, देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर पास्ट 5 इयर्स इज पॉजिटिव एवरी ईयर, माने नेगेटिव में गया नहीं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, ये सब फंडामेंटली इतना ही अच्छा कंपनी है कि कैश फ्रॉम कोर बिजनेस एरिया फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है और बढ़ते ही जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इंडिकेट्स दैट द कंपनी रेगुलरली जनरेट्स पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, माने कंपनी अच्छा है। फंडामेंटल स्कैम्स। अभी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स लोग के लिए। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है, वो लोग ये स्कैम्स फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगरी है, फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट स्कैम्स, फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन स्कैम्स, फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन स्कैम्स, पुट कॉल रेशियो स्कैम्स, ये 4 कैटेगरी है। तो अगर हम लोग फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट स्कैम्स में जाते हैं तो आपको दिखेगा हाई इंक्रीज इन फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, माने अंदर जाओ, ये फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है, हाई इंक्रीज। माने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो स्टॉक फिल्टर्ड आया है, ओपन इंटरेस्ट देखो 3 करोड़ 56 लाख, चेंज सिंस 36 लाख, माने 36 लाख नया ऐड हुआ है, जो है 11%। तो कुछ तो एक्टिविटी बढ़ा है ये स्टॉक में, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है माने कुछ एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है। तो ये स्टॉक ऊपर का तरफ जा सकता है, प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है, माने बुलिश है। अगर प्राइस नीचे है मगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, फिर बेरिश है, माने नीचे का तरफ जा सकता है। तो ये डिसीजन लेने में आपको इजी कर देगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो लोग काम करता है उसके लिए ये स्कैन्स माने लाइफ इजी कर देगा। पुट कॉल रेशियोज, स्टॉक्स विथ हाई पीसीआर। अब स्टॉक्स जो हाई पीसीआर रेंज में है, वो सब स्टॉक्स फिल्टर्ड आ गया है। या सिमिलरली आप फिल्टर लगा सकते हो, आपको चाहिए बाय प्राइस या बाय कैटेगरी, आपको स्मॉल कैप चाहिए खाली, स्मॉल कैप कीजिए, अप्लाई कीजिए और ये मेजर स्टॉक्स भी हटा दो। तो स्मॉल कैप्स कैटेगरी में जो जो स्टॉक्स ये कैटेगरी ये स्कैन फुलफिल करता है कैटेगरी, तो वो सब स्टॉक्स आ गया है। देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये जो है हाई पीसीआर में है, पुट कॉल रेशियो जो 0.98 है। तो ये क्या बोलते हैं, इन्फो सेक्शन में जाओ तो आपको दिखेगा पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.70, ये है हाई। हाई जोन जो है 0.70 से ऊपर जाता है पीसीआर, तो हम लोग हाई रेंज पकड़ता है। सिग्निफिकेंस क्या है, हाई पुट कॉल रेशियो यूजुअली सिग्निफाई दैट द स्टॉक इज नियरिंग सपोर्ट लेवल,
माने सपोर्ट लेवल का तरफ जा रहा है। माने आप बहुत केयरफुल रख के ट्रेड करो। सपोर्ट जोन में ऑलमोस्ट आ गया है, सपोर्ट लेवल में। तो ये सब स्कैन्स आपको, जो पुट कॉल लेके खेलता है, पुट कॉल में ट्रेड करता है, उन लोगों के लिए ये सब स्कैन्स है। और बहुत अच्छा डेटा है इसका अंदर, जो जो स्टॉक्स दे रहे हैं। तो वो स्टॉक्स अगर आप लेके ट्रेड करोगे तो आपको लाइफ इजी रहेगा। स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स ये भी है ऑप्शन ट्रेडर लोग के लिए। इंडेक्स ऑप्शन स्कैन्स, इंडेक्स स्ट्राइक विथ हाई इंक्रीज इन कॉल ओपन इंटरेस्ट। इंडेक्स स्ट्राइक्स विथ हाई इंक्रीज इन कॉल ओपन इंटरेस्ट। अंदर जाओ, इन्फो में जाओ। मीनिंग क्या है? इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस वेट चेंज इन करंट मंथ, ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन हैज इंक्रीज्ड ओवर 10% एंड मिनिमम ट्रेड काउंट इज 500। ये हम लोग का जो एल्गो लगा हुआ है, एल्गो का डिस्क्रिप्शन है। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज अ नेचुरल न्यूट्रल इंडिकेटर बिकॉज इट सिग्निफाइज द करंट मंथ ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन हैज इंक्रीज्ड। ये न्यूट्रल है। ये इसके साथ और स्कैन्स लगाना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। तो ये इंडेक्स है। आप ये सब इंडेक्स में अगर कॉल पुट खरीदना है या बेचना है तो ये सब स्कैन्स आप फॉलो कर सकते हो। अभी लास्ट कैटेगरी में जाओ, वो है कैंडलस्टिक स्कैन्स। कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक चार्ट जो है, चार्ट में कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है। तो बहुत तरीका का पैटर्न्स होता है। तो हम लोग वो पैटर्न्स पकड़ के एल्गो लगा के ये सब स्कैन्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलिश स्कैन्स में आप जाओगे तो उसका अंदर देखोगे व्हाइट मारुबुजू। मारुबुजू एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। तो वो पैटर्न अगर दिखता है तो वो बुलिश स्कैन है। तो देखो अंदर जाओगे तो 6 अगस्त को ये सब स्टॉक्स जो है व्हाइट मारुबुजू फॉर्म किया है। तो एक शॉट में हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को लिए। तो आप फिल्टर लगाओ मेजर स्टॉक, तो बढ़िया स्टॉक्स दिखेगा आपको। मेजर स्टॉक्स आप लोगों को बोला है निफ्टी 500 और BSE 500 स्टॉक्स जो सब है, वो है मेजर स्टॉक्स। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये कंपनी क्लोज किया है 475.25, चेंज है 5%। आज देखो, आज भी मोटा मोटी ऊपर ही था। तो ये स्टॉक कल कैंडलस्टिक, व्हाइट मारुबुजू कैंडलस्टिक फॉर्म किया है। तो आपको इजीली मिलते जा रहा है कि कौन सा स्टॉक्स व्हाइट मारुबुजू क्वालिफाई किया है। तो ये सब स्टॉक आप देखो, और ये सिग्निफाई करता है बुलिश। देखो सिग्निफिकेंस में, दिस इज अ पैटर्न which signifies the bulls have been able to push the price to a high and close near this range. This indicates bullishness in the market. माने बुल्स लोग ये सब स्टॉक्स में घुसा है और प्राइस ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, उसीलिए व्हाइट मारुबुजू फॉर्म हुआ है। तो ये था स्कैन सेक्शन। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। फिल्टर सेक्शन में वॉच लिस्ट कब ऐड होगा? सर ये सपोर्ट में, आप नवीन जी आप सपोर्ट में क्वेरी रेज कर दीजिएगा, वो लोग बोल देंगे। Is there a scan that will identify stocks that are rising during the last 20 minutes of the market? हम लोग जो है ना, वो ईओडी बेस्ड ऐप है, और स्कैन सेक्शन पूरा ईओडी बेस्ड है। तो दिन का एंड में हम लोग अपडेट करता है सब डेटा और ये स्कैन्स देते हैं। तो आप दिन का एंड में देख के होमवर्क करो नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए। एक ट्रेंडिंग सेक्शन है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो रियल टाइम डेटा देते हैं। उसमें आप डिसीजन ले सकते हो, मार्केट में कैसे लेंगे हम बोल देंगे आपको। मगर स्कैन सेक्शन में लास्ट 20 मिनट्स ऑफ मार्केट का कुछ स्कैन्स है नहीं। नवीन जी, नो देयर इज नो स्कैन्स इन मिनट्स, थैंक यू। वन डे बुलिश, संकेत जी, वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी इज फॉर नेक्स्ट डे और सेम डे। वन डे बुलिश इज द पैटर्न ऑफ बुलिश, वन डे आपको दिखा दे रहे हैं। प्राइस स्कैन्स में जाओ, वन डे, वन डे बिहेवियर में, वन डे बुलिश बोले ना आप।
वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी इज फॉर, अच्छा ये स्ट्रैटेजी सेक्शन में है, इज फॉर नेक्स्ट डे और सेम डे। ये नेक्स्ट डे के लिए ही है। आपको जो भी मिलेगा ईओडी बेस्ड मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए। बुलिश स्ट्रैटेजी आपको वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी सेक्शन में है वो आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करता है। डेली टाइम फ्रेम और एनी अदर टाइम फ्रेम। आरएसआई जो फिक्स्ड पैरामीटर्स है वो ही है। डेली टाइम फ्रेम 14 दिन का आरएसआई देते हैं हम लोग। कैलकुलेशन जो है वो है 14 डेज का। डेली टाइम फ्रेम का नहीं है। नवीन जी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। एआरएस एसआरएस। ओके। टेक्निकल स्कैन्स में जाते हैं। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई जो है वो हम लोग ये सब प्रीडिफाइंड स्कैन्स दे के रखा है। वो है 30, 50, 70। ये 50 वाला जो है वो ट्रेंडिंग अप है। मैंने ये ऊपर का तरफ जा रहा है। प्रीवियस आरएसआई 40 था, अभी देखिए 63। तो केपीआर मिल्स आपको पता ही है प्राइस भी बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग ऐसे प्री डिफाइंड एक लेवल सेट करके रखा है जो है ट्रेंडिंग अप, माने ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये ऊपर का तरफ ट्रेंड कर रहा है। बुलिश जो है वो 30 का ऊपर जब गया है तो सिग्नल देता है कि ये स्टॉक बुलिश की तरफ जा रहा है। आरएसआई क्रॉस अबव 70 माने बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओवरवॉच सिचुएशन में कोई भी टाइम में सेल हो सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये सब आरएसआई है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो क्या है अगर आपको जानना है तो इन्फो सेक्शन में जाओ। तो इन्फो सेक्शन में मिनी वीडियो सब दिया हुआ है। आप एक बार स्टडी करो, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एआरएस। एब्सोल्यूट रिटर्न स्कैन। एआरएस एडेप्टिव एंड स्टैट, ये इसका अंदर जाओ आप तो इसको दिखिएगा आपको इन्फो सेक्शन में एडेप्टिव एंड स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन्स। तो यहाँ आप पढ़ लो व्हाट इज adaptive RS, what is static RS, what does ARS signify. If a stock has performed better than the benchmark, then ARS is positive. बेंचमार्क से परफॉर्म ज्यादा कर रहा है जो, और एक हम स्कैन्स में समझा है आपको कि स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क इंडेक्स, वो अगर होता है तो एआरएस पॉजिटिव होगा। एआरएस जीरो सिग्निफाइज एग्जैक्टली सेम मूवमेंट, माने 15% स्टॉक भी बढ़ा है भागा है और निफ्टी भी 15%, तो वो जीरो होगा। नेगेटिव एआरएस सिग्निफाई क्या है, स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स, नीचे का तरफ जा रहा है तो एआरएस नेगेटिव है। तो ये हिसाब से आप एआरएस जज करके इजीली ट्रेड बना सकते हो। व्हाट डज एसआरएस सिग्निफाई, स्टॉक हैज परफॉर्म बेटर देन द बेंचमार्क, देन एसआरएस इज पॉजिटिव। सेम एसआरएस और एआरएस का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप पढ़ लो ऊपर। और हम सिंपली आपको समझा दे रहे हैं कि एआरएस अगर बेटर कर रहा है, स्टॉक अगर बेटर कर रहा है बेंचमार्क से तो एआरएस पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक अगर इक्वली परफॉर्म कर रहा है तो एआरएस इज न्यूट्रल, जीरो। और अगर नेगेटिव का तरफ परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है निफ्टी बढ़ते जा रहा है, तो ये खराब है और एआरएस नेगेटिव दिखेगा। सिमिलरली एसआरएस भी सेम। एसआरएस अगर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, अंडर परफॉर्म करेगा तो नेगेटिव रहेगा, और सेम परफॉर्म करेगा तो न्यूट्रल है। तो ऐसे ही डिसीजन ले सकते हो आप। रिलेटिव स्ट्रेंथ, अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ आप जान रहे हो क्या? ओके। स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज का जो है। फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स में जाते हैं तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये स्टॉक का आरएस था 0.81 रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्लोज 2099.80, चेंज है 5। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स।
तो दिस इज अ बुलिश इंडिकेटर, दैट इज RS इज ग्रेटर देन, एक सेकेंड, यस। सो RS जो है, दिस इज अ बुलिश इंडिकेटर, RS इज ग्रेटर देन 0.1। 0.1 का ऊपर जब जाता है तो हम लोग पकड़ता है कि ये बुलिश है, तो denotes that the stock is strongly outperforming the benchmark index. Significant stocks which are strongly outperforming the benchmark index, increase in stock price is more than increase in price of benchmark index. माने आपको जो समझाया वही है कि स्टॉक प्राइस आउट परफॉर्म करते जा रहा है, तो ये सब स्टॉक्स आप अगर जितना RS ज्यादा है, सोचिए 0.81, उसका उतना स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का। तो 0.76, 0.61, ये सब माने सिचुएशन जो है आपको देख के डिसीजन लेना पड़ेगा कि 0.81 अगर RS है तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ऊपर का तरफ बढ़ते जा रहे हैं। RS जो है 55 डेज का, वो बहुत तगड़ा है, बेंचमार्क इंडेक्स से ऊपर जा रहा है, स्टॉक परफॉर्म बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ये है RS। नवीन जी ठीक है, अभी समझ में आया? थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। प्लीज गिव बेस्ट कॉम्बो ऑफ स्कैन्स फॉर टेकिंग एक्शन नेक्स्ट डे। कॉम्बिनेशन स्कैन्स का सेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेंगे, तो थोड़ा वेट कर जाइए। सी डेली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, डेली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स भी हम लोग दिखाएंगे अभी तुरंत। विनोद जी, इज देयर RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्कैन्स? हाँ जो, हाँ जी, RSI पॉजिटिव माने बुलिश वाला जो फॉलो कर सकते हो आप। एट व्हाट टाइम स्कैन्स गेटिंग अपडेटेड? एवरी डे 7:30, 7:30 का बाद EOD प्रोसेस हो जाता है, उसका बाद आप कभी भी देखो तो यो सब स्कैन्स अपडेटेड रहेगा। यस एब्सोल्युटली गणेश जी, बैक टेस्टिंग के लिए आपको ऑप्शंस है, आपको दिखा दे रहा है गणेश जी। ये आप स्कैन्स में जाओ, कोई भी स्कैन्स में जाओ, प्राइस स्कैन्स में जाओ, प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन्स, यहाँ आप देखो 6 तारीख का तो ये है। आप अगर 2 तारीख देखोगे, 2 अगस्त, तो 2 अगस्त में कौन सा स्टॉक्स क्वालिफाई किया था, उसका अगर डाउनलोड करके आप एक्सेल ले हुए तो 2 तारीख दिखेगा, कंपेयर कर सकते हो। 3 तारीख भी, 5 तारीख भी मिल जाएगा ट्रेडिंग डेज, माने थर्ड एंड फोर्थ वॉज सैटरडे संडे, फिफ्थ को दिखेगा फर्स्ट, लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज का बैक टेस्टिंग करने का स्कोप देते हैं हम लोग। देखिए 29, 30, 31, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स का डेटा है। तो ये बैक टेस्टिंग करने में आपको हेल्प करेगा और बहुत तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये। थैंक यू सौरभ जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बोले आप, थैंक यू। बेंचमार्क इंडेक्स और सेक्टोरल इंडेक्स क्या है? संभाजी, बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो है निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब बेंचमार्क इंडेक्स है। और सेक्टोरल इंडेक्स है, सोचिए हम ITC, ITC का कोमोडिटीज में है, तो वो कोमोडिटी सेक्टोरल इंडेक्स है उसका। तो सेक्टोरल इंडेक्स जो है, बहुत सारा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, कोमोडिटीज, फाइनेंस, PSU बैंक, ये सब सेक्टोरल इंडेक्स है। गणेश जी ओनली 7 डेज ऑफ बैक टेस्टिंग, करेक्ट। अभी तो वही दे रहे हैं हम लोग। निसार ahmed, थैंक यू, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट में जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम लोग तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोग वो तो रेकमेंड नहीं करते, मगर जो स्कैन्स है वो टेक्निकल सेक्शंस आप देखो, तो स्विंग ट्रेडर्स लोग के लिए टेक्निकल स्कैन्स जो है आप इजीली देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, वो है माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। माई कॉम्बो स्कैन्स में जाओ, माई स्टॉकेज सेक्शन में माई कॉम्बो स्कैन्स। ये माई कॉम्बो स्कैन्स है, इसमें ना 20 स्कैन्स आप ऐड कर सकते हो। 20 कॉम्बिनेशन स्कैन्स कैन बी एडेड, मैक्सिमम ऑफ 20 कॉम्बिनेशन स्कैन्स हम लोग देते हैं।
तो यहाँ ये जो प्लस साइन है ना, प्लस साइन में आप करोगे तो इसमें नेम बोल के आएगा। आपको अगर लिखना है कि फंडामेंटल स्कैन्स, फंडामेंटल लिखो, ऐड करो, तो देखो नीचे फंडामेंटल बोल के आ गया है। तो इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन है, डिलीट करो। आई यू श्योर यू वांट टू रिमूव, ओके, तो डिलीट हो गया। तो ये डिलीट करो, डिलीट हो गया। यहाँ मैक्सिमम 20 ऐड कर सकते हो और डिलीट और एडिट कर सकते हो। तो हम लोग क्या है, विवेक सर जी अ, आप लोग के लिए प्री डिफाइंड कॉम्बो स्कैन्स बना के दिए हैं फॉर योर हेल्प। तो ये शीट आपके साथ सपोर्ट टीम शेयर कर देगा, और हम भी अभी शेयर कर देते हैं। अगर डाउनलोड होता है तो बढ़िया, और नहीं तो सपोर्ट टीम तो आप लोग को भेज ही देंगे। एक सेकेंड, शेयर कर देते हैं। And Kaustav, there's a possibility that when you're sharing this ये देखिए, हम PDF विवेक in the बजाज chat box, कॉम्बिनेशन स्कैन्स पीडीएफ बोल के एक शेयर किया है। Kaustav, can you hear me? तो ये आप आपके यूज के लिए रख सकते हो, और हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे एक कॉम्बिनेशन स्कैन। So I think that it can be a possibility that you will not be able to view the combination scan. In that case, we will upload the combination scan along with the recording. कमेंट सेक्शन में ये कमेंट सेक्शन में ही डाला है। तो ये जो है, अगर नहीं होता है तो आपको सपोर्ट टीम दे देगा। तो हम लोग लौटते हैं यहाँ माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो आई विल क्रिएट दिस कॉम्बिनेशन स्कैन्स विच मिस्टर विवेक बजाज हैज गिवन फॉर यू ऑल। सो आई विल एक्सप्लेन द एंटायर कॉम्बिनेशन स्कैन। दिस इज फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विथ प्राइस एक्शन। ये एक कॉम्बिनेशन स्कैन है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्कैन है केपेक्स प्लस अर्निंग प्लस प्राइस एक्शन। और एक स्कैन दिया हुआ है पावर ऑफ आर एस स्टॉक्स, टाइगर स्टॉक्स, 88 स्टॉक्स। ये 5 स्कैन्स आप लोग के हेल्प के लिए सर खुद बना के आप लोग के लिए दिया है। तो हम अभी एक बना के आप लोग के लिए दिखाएंगे, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन कैन। ये माई कॉम्बिनेशन में स्कैन्स में जाओ, ये पेज में राइट हैंड साइड प्लस साइन जो है क्लिक करो। तो फीपा, फॉर FIPA लिख के हम ऐड किया, देखिए ऐड हो गया नीचे। तो इसका अंदर आप क्लिक करोगे तो दो सब टैब आएगा, एक है स्कैन्स, एक है स्टॉक्स। स्कैन्स टैब में आपको दिखेगा ऐड मल्टीपल स्कैन्स। तो मल्टीपल स्कैन्स का डेफिनेशन जो है, मैक्सिमम 10 स्कैन्स यू कैन ऐड। 10 स्कैन्स कहीं से भी स्कैन सेक्शन में आप ऐड करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है जो आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैक्सिमम 10 स्कैन्स आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ऐड स्कैन्स क्लिक करेंगे, तो ये जो बॉक्स आया है इसमें सर्च करके आप एक एक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ सर ने जो दिया है वो है क्लोज विद इन 52 वीक्स हाई जोन। फर्स्ट कैन क्लोज विद इन 52 वीक्स हाई जोन। यहाँ आप लिखो तो सर्च में ऑटोमेटिक आ गया क्लोज विद इन 52 वीक्स हाई जोन। तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो स्टार है येलो हो जाएगा। येलो होने से माने इट हैज बीन एडेड। देखिए पीछे आपको दिख जाएगा, देखो ऐड हो गया है। ठीक है। तो फिर से ऐड स्कैन करो। तो नेक्स्ट स्कैन इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ सिमिलरली हम सर्च करेंगे इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐड हो गया। फिर इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी है नीचे ही, क्लिक कर दिया, येलो हो गया। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, देखिए ऐड हो गया। क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर,
फिर हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, क्लिक कर दिया, ऐड हो गया। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए ये भी येलो हो गया। तो टोटल देखिए स्कैन्स इन दिस कॉम्बिनेशन स्कैन 7 स्कैन्स, 7 स्कैन्स टोटल सर ने दिया है। इसका नाम क्या दिया है? फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विथ प्राइस एक्शन, माने फाइनेंशियली भी कंपनी जो है इंप्रूव हुआ है और प्राइस एक्शन भी दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, माने प्राइस भी पॉजिटिव है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी भी पॉजिटिव है। तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो सातों स्कैन्स है, क्लोज विद इन 52 वीक्स हाई जोन, improve return on equity, improve return on capital employed, quarterly net profit growth year on year, quarterly EBITDA growth year on year, high increase in quarterly sales year on year, consistent cash from operations। ये देखिए, ये क्लोज विद इन 52 वीक्स हाई जोन, माने 52 वीक्स हाई जोन का 15% का गैप में ये सब स्टॉक खड़ा हो रहे हैं, माने वो रेंज में है। इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कैन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली, मैंने स्कैन्स बहुत इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था, इक्विटी शेयर होल्डर को इंप्रूव रिटर्न मिल रहा है, मगर पॉजिटिव रिटर्न एवरी ईयर मिलते जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को। इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कंपनी कैपिटल लगाया है उससे रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इम्प्रूव रिटर्न, जो जो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा रिटर्न आ रहा है वो सब इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ माने इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट किया है और लास्ट ईयर यही क्वार्टर में उससे कहीं ज्यादा ये क्वार्टर में प्रॉफिट किया है, माने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया था उससे कहीं ज्यादा इस ईयर वही क्वार्टर में नेट प्रॉफिट किया है, तो बढ़ते जा रहे हैं नेट प्रॉफिट। क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, इस बार जो एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये सब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन है वो इस क्वार्टर में जो फिगर है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में बहुत ज्यादा इस क्वार्टर में बढ़ा है, तो ये सब स्टॉक्स इसमें आएगा। हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली सेल्स जो है इस क्वार्टर का और लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में इस ईयर का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माने कोर बिजनेस एरिया से जो कैश आ रहा है वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। तो ये सातों स्कैन्स अगर एक साथ आ जाए तो परफेक्ट मैच है। तो परफेक्ट मैच का अंदर देखो, मैंने सातों का सातों स्कैन मैच किया है ये सब स्टॉक में, तो ये सब स्टॉक फंडामेंटली भी तगड़ा है, प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छा है, 52 वीक्स हाई का बहुत क्लोज है, तो कभी भी ये 52 वीक्स हाई क्रॉस करके और भी ऊपर का तरफ जा सकता है। तो ये सब स्टॉक सोचो। अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया का अंदर जाओ तो ये आपको दिखेगा कि ये देखो सातों का सातों स्कैन्स आपको फुलफिल किया है, क्राइटेरिया फुलफिल। तो आप प्राइस एक्शन में जाओ, प्राइस में जाओ, तो प्राइस में दिखेगा मोटा मोटी ये ऊपर का तरफ जा रहा है। देखो एक साल में लो था 21,000, अभी 29,000, 6 महीना में देखो ये रिटर्न देखो, 6 मंथ, 1 ईयर में 17% रिटर्न, 6 मंथ्स में एवरेज मोटा मोटी ठीक है, मगर फंडामेंटली कंपनी अच्छा है उसीलिए इन फ्यूचर और भी बढ़ सकता है। तो अदानी पोर्ट, आदित्य बिरला सन, ये सब स्टॉक जो है ये स्कैन्स में फंसा है, परफेक्ट मैच। अभी आपको अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्कैन्स में गए तो ये देखो ऑलमोस्ट देयर में है, ये स्कैन्स सोचो वो सातों स्कैन्स इसमें है और ये स्टॉक्स फिल्टर में ऑलमोस्ट देयर केपीआर मिल्स है। तो ऑलमोस्ट देयर माने सातों का सातों स्कैन्स पूरा फुलफिल नहीं किया है, ये जो सातों स्कैन दिया है सातों का सातों स्कैन पूरा फुलफिल नहीं किया है, मगर 75%, माने 10 स्कैन्स में अगर 10 स्कैन्स होता है तो आठों स्कैन्स अगर फुलफिल कर लेता है तो वो है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मैच्ड में, परफेक्ट मैच में है और ऑलमोस्ट देयर बोल के है। तो आप अगर इन्फो सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा
कॉम्बिनेशन स्कैन्स, ये सब स्टॉक्स तो आ गया है। इसमें इंफॉर्मेशन में आपको दिखेगा कि कॉम्बिनेशन स्कैन्स में जो ऑलमोस्ट देयर है वो है 75% रिजल्ट्स जिसका है। और ये सब स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट है। तो कोलगेट पामोलिव फॉर एग्जांपल, ये फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सब स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट का डिसीजन मेकिंग में इजी करता है। ऐसे आप खुद कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाओ और यूज करो ये फीचर। ये फीचर में भी आप देखो राइट हैंड साइड में फिल्टर बोल के है। फिल्टर में सब कैटेगरीज है। बाय पीरियड अगर चाहोगे, बाय सेक्टर चाहोगे, बाय मार्केट कैप चाहोगे, बाय बाय मार्केट कैप फॉर एग्जांपल 100 करोड़ से 1000 करोड़ का छोटा कंपनी आपको चाहिए, खाली अप्लाई करो, मेजर स्टॉक्स हटाओ। तो ये सब स्टॉक्स जो है वो माने ऑलमोस्ट स्मॉल कैप है, मगर ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब स्टॉक आप फ्यूचर के लिए खरीद के या मैंने या स्टॉक मार्केट का जो भी ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ले सकते हो। डाउनलोड भी कर सकते हो सिमिलरली। डाउनलोड करके एक्सेल में ले लो और रिसर्च करो खुद। और ये बैक टेस्टिंग जो है 7 दिन का, लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज का दिया हुआ है। और आज माने 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल डेज का बैक टेस्टिंग का ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल फीपा, ये जो स्कैन बनाया हम, 1 अगस्त में कौन सा स्टॉक्स आया था? आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स। ये स्टॉक आप बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हो कि ये स्टॉक सच में भाग रहा है कि नहीं, 1 तारीख का बाद और बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। आप जो फंडामेंटल स्कैन्स ये लगाए हो, ऐसे सिमिलरली टेक्निकल स्कैन्स भी आप कॉम्बिनेशन में लगाओ। सर का ये कॉम्बिनेशन शीट भी फॉलो करो। इसमें आप देखोगे कि बैक टेस्टिंग करके सोचो 1 तारीख में वो फुलफिल किया था, 2 तारीख में वो बढ़ गया। तो एक अगर सेकंड को आप सवेरे आके खरीद लेते हैं 9:15 को या मार्केट आवर्स में, तो आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये है माई कॉम्बिनेशन स्कैन सेक्शन। ये सेक्शन में आप 20 स्कैन्स ऐड कर सकते हो। उसका जैसे क्रिएट करके दिखाया वैसे क्रिएट करो। फीपा जैसे क्रिएट किया, उसका अंदर 2 सब कैटेगरीज है। वो है वन स्कैन सब टैब और एक है स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप देख सकते हो कौन सा स्टॉक्स क्वालिफाई किया है। Now I'll take questions. When entering those stocks, मनीषा जी, when entering those stocks, समझ में नहीं आया, प्लीज क्लैरिफाई। हाउ कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन फॉर आवर रेफरेंसेस? रिकॉर्डिंग आपको सपोर्ट में मिल जाएगा। आप सपोर्ट को ये क्वेरी रेज करो, वो दे देगा लिंक। हाउ कैन वी, इज दिस फीपा फॉर लॉन्ग टर्म? या लॉन्ग टर्म के लिए ही है, क्योंकि फंडामेंटल जहाँ लगते हैं, अगर प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप डिसीजन देख के ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो। स्टॉक अगर इन नियर फ्यूचर आपको शायद 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो अगर दे सकता है तो बढ़िया ही है। लीना जी, अ, नवीन जी, मेरा कॉम्बो में तो कोई रेडीमेड स्कैन अवेलेबल नहीं है। नहीं, आपको कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाना है। तो ये जो आपको पीडीएफ शेयर करेगा सपोर्ट, या हम जो किया है वो आप देख के कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना के ऐड करो। और खुद आस्ते आस्ते स्कैन सेक्शन में जो जो स्कैन्स आपको लगे कि पसंद आया, वो सब स्कैन्स आप ऐड करके अ, आपका खुद का कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो। रिकॉर्डिंग सेशन के लिए सपोर्ट में आप बोलो, वो लोग हेल्प कर देगा। कैसे क्रिएट कराना है? व्हाई दिस हैज गॉट प्राइस एक्शन व्हेन एंटरिंग स्टॉक्स? गणेश जी, ये जो फंडामेंटल और प्राइस एक साथ करके कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाया सर, सर कुछ सोच के ही बनाया है कि प्राइस एक्शन फंडामेंटल के साथ अगर दिखता है कि प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो और तगड़ा होता है डिसीजन मेकिंग में। तो हम लोग का डिसीजन मेकिंग और इजी हो जाएगा। गणेश जी, यानी शो पीडीएफ पेज बाय पेज, वी विल टेक स्क्रीनशॉट मीनवाइल। ओके मधु जी, थोड़ा देख लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मगर सपोर्ट आपको पूरा दे देंगे। और नंबर भी शेयर कर दिया है स्वाति मैडम, तो वो नंबर में आप फोन करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा।
हाउ टू गिव नेम फॉर कॉम्बो स्कैन्स। राजन जी आपको दिखा है, फिर से और एक बार दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये प्लस साइन जो है माई कॉम्बो स्कैन्स का राइट हैंड साइड में, प्लस साइन में क्लिक करो तो ये नेम बोल के एक फील्ड आता है, नेम में क्लिक करो तो इसमें आप टेक्निकल लिख दो, टेक्निकल, टेक्निकल लिख के ऐड कर लो। देखो नीचे आ गया है टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल स्कैन। इसका अंदर जाके आप स्कैन्स ऐड करो, ऐड स्कैन्स। ठीक है। ओके राजन जी, राजन महेंद्र जी समझ में आया? ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेशन। ओके, माय नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फीचर इज ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये जो सेक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन रियल टाइम है। रियल टाइम क्यों है? ये जो एनएससी का प्राइसेस है, हम लोग 1 मिनट गैप में दे रहे हैं, मैक्सिमम 1 मिनट, ऑलमोस्ट रियल टाइम। तो ये 5 सब टैब आप देखो, प्राइस मूवर्स, वॉल्यूम शॉकर्स, 52 वीक्स हाई लो, ऑल टाइम हाई लो, मोस्ट विजिटेड, ये 5 टैब्स है। तो प्राइस मूवर्स में आते हैं। प्राइस मूवर्स में दिखता है कि आज का दिन में इन द ट्रेडिंग आवर्स कौन सा स्टॉक्स सबसे ऊपर भाग रहा है। तो आप अगर देखोगे, बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, तेजस नेटवर्क, एचएफसीएल, ये सब गेनर्स है। यहाँ राइट हैंड साइड में यू विल फाइंड टू बॉक्सेस, वन गेनर वन लूजर्स। इफ यू गेनर्स बाय डिफॉल्ट इट इज क्लिक्ड, सो ये जो है सब स्टॉक गेन किया है। तो आप सोचो बीएसएफ इंडिया लिमिटेड में गए हो, प्राइस में देखो 9/15 को 5,800 रुपया करीब था। तो आप रियल टाइम अगर देखते, सोचिए आप 1 बजे ही देखते तो 6,100 में देखते कि ये स्टॉक 5%, 6%, 7% बढ़ गया है। तो ये स्टॉक ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर देखते, ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, तो आप अगर खरीद लेते तो 20% माने 15% का मुनाफा हो जाता, 15% प्रॉफिट हो जाता इंट्राडे में। तो इंट्राडे का डिसीजन मेकिंग लाइफ इजी कर देता है ये सेक्शन। तेजास नेटवर्क बोल के स्टॉक है, ये भी आप फॉलो कर सकते थे। सवेरे ही देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सवेरे था 1170 रुपया, अभी 1290, 1290, 12 बजे ही 1290 हो गया था। तो ये शॉर्ट मनी इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसीजन लेने में इजी कर देता है। यहाँ भी फिल्टर है, आप अगर फिल्टर करोगे, खाली आपको बीएससी स्टॉक्स चाहिए तो खाली बीएससी स्टॉक्स आ जाएगा। ये देखिए खाली बीएससी स्टॉक्स। अगर आप चाहोगे कि एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स चाहिए, एफएनओ स्टॉक्स आ जाएगा। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आई शेयर वांट टू डाउनलोड, डाउनलोड करके एक्सेल शीट में सीएसवी फॉर्मेट में आ जाएगा, आप रिसर्च करो खुद। तो हम फिल्टर मेजर स्टॉक लगा देते हैं और लूजर सेक्शन में जाते हैं। तो आज का दिन में EIH लूज किया है ऑलमोस्ट 4.3%। तो अगर बेच के मैंने सेल करके बाई करना है तो ये स्टॉक्स आपको दिख जाएगा, ज्यादा लूजर्स कौन सा स्टॉक्स है। वॉल्यूम शॉकर, कौन सा स्टॉक्स बहुत तगड़ा वॉल्यूम आया है, ये सब मैंने पार्टिसिपेशन बढ़ा है जो जो स्टॉक्स में, वो तुरंत आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में दिख जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज, आज का वॉल्यूम है 14 लाख, जो एवरेज 5 दिन का लास्ट था 1 लाख, 1 लाख से 14 लाख, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ज्यादा। कुछ तो बात है ये सब स्टॉक में। बीएसएफ तो आप देखे हो 20% ऊपर भी भागा है, ट्रेडेड क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। EIH देखिए नीचे भागा है, मगर वॉल्यूम बहुत तगड़ा है। तो ये भी आपको प्राइस रिलेट करके वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, प्राइस गिरते जा रहा है, माने और नीचे जा सकता है। और प्राइस वॉल्यूम बहुत बड़ा है, प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, माने ऊपर की तरफ जा सकता है। 52 वीक्स हाई लो, ये 52 वीक्स हाई लो जो टैब है, इसका अंदर आप जाओगे तो आपको दिखेगा हाई और लो बोल के एक राइट हैंड साइड में स्विच है। तो हाई बाय डिफॉल्ट आएगा। तो 52 वीक्स हाई आज बीएसएफ माने 7 तारीख बीएसएफ नया 52 वीक्स हाई बना है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 6933.15, न्यू 52 वीक्स हाई भी वही है।
माने लास्ट ट्रेड प्राइस भी वो था, माने एकदम ऊपर में ही माने फ्रीज में बंद किया है, 20% का अपर सर्किट मारा है स्टॉक। जुबिलियंट इंग्रेविया, इसका देखो न्यू 52 वीक्स हाई आज ही मारा है 679.50, 670 से लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। तो ये सब स्टॉक आप देख सकते हो कि ये 52 वीक्स हाई कौन कौन स्टॉक्स मारा है। लो भी 52 वीक्स लो कौन सा स्टॉक मारा है आज? इंडसइंड बैंक, इक्विटस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल टाइम हाई लो। ऑल टाइम हाई लो में आपको दिखेगा ऑल टाइम हाई कौन सा स्टॉक बना है, न्यू ऑल टाइम हाई, BASF, बीकाजी, PB फिनटेक, अजंता फार्मा, ये सब न्यू ऑल टाइम हाई बना है आज। तो ये अलार्मिंग होता है कि आज नया ऑल टाइम हाई बना है, माने और भी इन फ्यूचर 2-3 दिन और भी ऊपर भाग सकता है। तो ट्रैक करो। लो भी, फिर ऑल टाइम लो जो है स्टॉक्स आपको दिख जाएगा। ये सब स्टॉक्स जो है ऑल टाइम लो बना है। मेजर स्टॉक्स हटा दिया तो आशापुरा लॉजिस्टिक्स, इतना इतना सब स्टॉक्स आ गया ऑल टाइम हाई लो में, ऑन टाइम लो में। मोस्ट विजिटेड स्टॉक्स, ये सेक्शन जो है हम लोग का ऐप में, आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग यूजर्स हैं, वो कौन सा स्टॉक ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो ये देखो जोमेटो, थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा आदमी लोग जोमेटो में देख रहे हैं। थोड़ा होल्ड कीजिए please। So I hope the session was good. Are there any? I'll check some queries if there. Rajesh Gupta ji, sir, are there any cases where price moved but not volume? They should be going hand in hand. Need examples of such deviations. आप थोड़ा रिसर्च करो, अंदर दिख जाएगा आपको। जो वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस प्राइस नहीं बढ़ा है, तो आप थोड़ा रिसर्च करो, मिल जाएगा। कैन अ टैब फॉर सॉर्टिंग दीज स्टॉक्स A to Z? शशांक जी अभी तो है नहीं, मगर आई टेक योर रिक्वेस्ट। थैंक यू। ट्रेंडिंग स्टॉक इज रियल टाइम and not EOD. It should be time stamped. SS. Okay, I'll take your suggestion, sir. Time stamp. ठीक है जी। Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. I hope it was helpful. How was it? Let me know, please. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you.